عید پاشکا کا 50واں دن یعنی عید پینتیکوست منا رہے ہیں۔ پاک مقدس کلیسیا کے ساتھ مل کر پاشکا کے بعد آنے والا یہ 50واں دن ہے۔ روح القدس کے نزول کی یہ عید ہے، اور خداوند خدا اپنے وعدے کے مطابق یسوع مسیح اپنے موت مسیح لوگوں کو عطا کرتا ہے، بھیجتا ہے تاکہ یہ رہنما ان کی رہنمائی کر سکے، انہیں کلام کے بھیدوں کے بارے میں عیاں کر سکے، انہیں خدا کی اس برکت، خدا کی اس نعمت سے آگاہ کر سکے جس نعمت اور جس برکت کے لیے خداوند خدا نے اپنے رسولوں کو چنا تھا۔ آج ہم روح القدس کی بابت جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس روح القدس کی بابت جاننے سے پہلے آئیے ایک دفعہ آج اس ماں کو بھی سلام کرتے ہیں جس کی رہنمائی میں اور جس کی موجودگی میں شاگردوں نے روح القدس حاصل کرنے کی تیاری کی۔ رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں ہے کہ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ نئے عہد نامے کی پہلی خاتون مقدسہ ماں مریم ہے جسے روح القدس سے نوازا گیا تھا۔ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں یہ لکھا ہے، جہاں پر جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی۔ تو نئے عہد نامے میں پہلی خاتون مقدسہ مریم ہے جسے روح القدس ملتا ہے، روح القدس سے وہ معمور کی جاتی ہے، روح القدس کی بدولت وہ حاملہ کی جاتی ہے، روح القدس کی مدد سے وہ کلمہ متجسد کرتی ہے، روح ہی کی مدد سے وہ یسوع مسیح کو اپنے بدن میں، اپنے آنگن میں، اپنے جسم میں جگہ دیتی ہے، اور اسی روح کی معموری کو آج سننے کے لیے، اسی روح کی معموری میں آج خداوند خدا کے حضوری میں آتے ہیں تاکہ ہم بھی خداوند اپنے خدا سے اس روح کی معموری کو حاصل کرنے والے بنے۔ آئیے مل کر ماں کو سلام کرتے ہیں۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ عزیزو، ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ آیت عدد کی کتاب میں سے لی گئی ہے، 11ویں باب میں سے، جہاں پر موسیٰ اس آیت کو بولتا ہے، اور یہ آیت عید پینتیکوست یعنی آج کے دن رسولوں پر روح القدس کے نازل ہونے پر یہ آیت پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ موسیٰ بیابان میں ہے اور خدا کا روح موسیٰ سے لیا جاتا ہے اور 70 بزرگوں پر انڈیلا جاتا ہے۔ خدا موسیٰ پر دیے گئے اس روح میں سے لیتا ہے اور 70 بزرگوں کو دیتا ہے، اور 70 بزرگ نبوت کرتے ہیں، اور نبوت کرنے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور موسیٰ اس بات کی تائید کرتا ہے، یہ جملہ بولتا ہے کہ کاش خدا کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان پر ڈالتا۔ یہ آیت عدد کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 27ویں آیت ہے، 27ویں آیت ہے، جس میں موسیٰ کہتا ہے کاش خدا کے سب لوگ نبی ہوتے اور خدا اپنی روح ان پر ڈالتا، ان میں نہیں، ٹھیک ہے جی، ان پر، ٹھیک ہے جی، ان پر ڈالتا، میں نہیں۔ اسی جملہ غور نہ سننا ہے، جملہ بولے ذرا کی ہے جی، کاش خدا کے، ہاں جی، سب لوگ کیا ہوتے؟ نبی ہوتے، نبوت کرنے والے ہوتے،
ٹھیک ہے جی، نبوت کرنے والے ہوتے ہیں اور خداوند اپنی روح ان پر ڈالتا ہے۔ عید پینتیکوست کے موقع پر ہم روح القدس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور روح القدس خدا کی طرف سے دیا گیا رہنما، مددگار یا وکیل ہے۔ خدا کی طرف سے دیا گیا مددگار ہے جو خدا کے کلام کے بھیتوں کو جاننے، خدا کے کلام کے بھیتوں کو کھولنے، خدا کے کلام کے بھیتوں کو اپنے ہمارے سامنے پیش کرنے اور خدا کی باتوں کو ہمارے سامنے عیاں کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے اسے خدا کا موعد، مسیح کا موعد، مسیح کا وعدہ، مسیح کا نام یا مسیح کے نام پر بھیجا جانے والا وکیل کہا جاتا ہے۔ میں پرانے عہد نامے میں سے چند مختصر سا تعارف روح القدس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں پرانا عہد نامہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ خدا کا روح دنیا میں روح القدس کے نازل ہونے سے پہلے بھی موجود تھا، اور وہ نجات کے کام خدا کے ساتھ مل کر رہا تھا۔ تکوین کی کتاب اس کے پہلے باب کی 3 آیت ہے، اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ عدد کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 25 آیت ہے کہ تب خداوند بادل میں نیچے اترا اور موسیٰ سے بولا، اور اس روح میں سے جو موسیٰ پر تھی لے کر ان 70 مردوں پر ڈالی۔ تو جب روح نے ان پر قرار پایا، جملہ غور سے سننا ہے، جب روح نے ان پر 70 مردوں پر قرار پایا، ٹھہرایا، ٹھہر گیا، رکا، ان پر آ ٹھہرا، تو وہ سب نبوت کرنے لگے اور آئندہ کرتے رہے۔ ایک دن کی نبوت نہیں، ایک دن کی نبوت نہیں، بلکہ نبوت کرتے رہے اور آئندہ بھی کرتے رہے۔ اشعیا نبی کے صحیفہ اس کے 11ویں باب میں کی پہلی 3 آیات اس روح القدس کے بارے میں تعارف بیان کرتی ہے، اور لکھتا ہے اشعیا نبی کہ خداوند فرماتا ہے کہ یسی کے تنا میں سے ایک کوپل نکلے گی اور اس کے جڑ سے ایک نو نہال اگے گا، اور اس پر خداوند کی روح قرار پائے گی۔ خدا کی روح جو آج کے دن شاگردوں پر قرار پاتی ہے، خدا کی روح جو آج کے دن شاگردوں پر جو ہے وہ قرار پائی جاتی ہے، یہ روح کے پھل آپ کو بھی بانٹے گئے ہیں۔ سب کو ملے ہیں جی؟ ہاں جی، روح کے پھل سب کو ملے ہیں۔ ذرا اپنا اپنا پھل دیکھو، نعمت دیکھو، کیڑی ہے نعمت دیکھو۔ ہاں، کسی کو ایمان ہے، کسی کو پرہیزگاری ہے، کسی کو خدا کا خوف ہے، کسی کو علم ہے، کسی کو علم ہے، کسی کے پاس صبر ہے، کسی کے پاس محبت ہے۔ تو آج کی دوسری تلاوت میں یہ لکھا ہے کہ خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح تاثیریں طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے۔ سو خدمتیں، یہ خدمتیں آپ کو ملی ہیں، بانٹی گئی ہیں۔ یہ کلیسیا ہر سال جو ہے وہ تقسیم کرتی ہے تاکہ آپ اس خدمت کو، اس نعمت کو اپنی زندگی میں قبول کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بانٹنے کا مقصد ہے، یہ ایسے نہیں بانٹی گئی، ان پر محنت کی گئی ہے، انہیں بنایا گیا ہے، انہیں کسی کام کے لیے آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ جا کے پرچتی کے رکھ دینا ہے، یا اتنی رالو کے دل تاکتے رکھ دینا ہے، لو جی خدا بندہ ہے واپس لے جائے، اگلے سال پیسہ ہوئے ایک دن ہے۔ یہ آپ کو کسی مقصد کے تحت دی گئی ہے، اور مقصد کیا ہے کہ اس نعمت کو آپ نے قبول کرنا ہے، اس نعمت کے لیے بلا ناگا آپ نے دعا کرنی ہے، اس نعمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جو شاگرد مقدسہ مریم کی رہنمائی میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، جو شاگردوں نے روح القدس کی نعمت پانے کے لیے، روح پاک پانے کے لیے، پاک روح کی برکت
यरूशलेम में अपनी जगह पर कायम रहते हुए खुदा के इस वादे का इंतजार करते हुए अपने आप को उन्होंने तैयार किया। दुआ में मशगूल रहे, दुआ में कायम और दायम रहे, दुआ में ठहरे रहे, ताकि रूह कुदस को अपनी जिंदगी में हासिल करने वाले बन सके। सो ये नेमतें जो आपको दी गई है, इन नेमतों के लिए आपने भी खुदा से दुआ करनी है। ये नेमतें 365 दिन तक आपके पास है। अगले साल पास्का के 50वें दिन फिर आप यहाँ पर आएंगे। अगले साल ये नहीं कि तुसी बेच आना ही नहीं है जी, उन पास्का के 50वें दिन ही आना है, पर साल बाद ही जावांगे। आना जरूर है, लेकिन नेमता फिर अगले साल तक दितियां जाएंगियां। फिर तारे स्पुर्द एक एक नेमत की जाएगी, फिर तारू एक एक बरकत रूह दी दी जाएगी, एक एक काम तारे स्पुर्द किया जाएगा ताकि तुसी नवी बरकत हासिल कर सको। क्योंकि कलाम में लिखा है कि नबूवत का ये काम आइंदा चलता रहा, काम जारी और सारी रहा। और ये नेमत के लिए आपने अपने आप को तैयार करना है। बिला नागा खुदा से दुआ करनी है कि खुदा आपको इस नेमत से, इस बरकत से नवाज सके, मोहब्बत की बरकत से नवाज सके, इल्म की बरकत से नवाज सके, हिल्म की बरकत से नवाज सके, परहेजगारी की बरकत से नवाज सके, खुदा के खौफ की बरकत से नवाज सके, खुदा के फजल की बरकत से नवाज सके। आपको इन बरकत, इन फजाइल से नवाजते हुए आपके साथ अपनी जिंदगी को गुजारने वाला बन सके। सो इशाया नबी का सहीफा 11वां बाब भी इन नेमतों की बात करता है। हिकमत की नेमत, फहम की नेमत, मशवरत की नेमत, कुव्वत की नेमत, मार्फत की नेमत और खुदावंद के खौफ की नेमत। खुदा के खौफ की रूह जो उस बच्चे पर, नौनिहाल पर जो है वो करार पाएंगी। इशाया नबी का सहीफा उसका 61वां बाब उसकी पहली आयत भी रूह कुदस के बारे में बयान करती है और लिखा है कि मालिक खुदावंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे मसा किया ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा कि शिकस्ता दिलों को दुरुस्त करो और सीनों को आजादी और कैदियों को रिहाई की बशारत दो। इसी तरह हिजकिय्याह नबी अपने 36वें बाब की 26वीं आयत में लिखता है और कहता है कि खुदावंद फरमाता है कि मैं तुम्हें एक नया दिल बख्शूंगा, तुम्हारे बातन में नई रूह डालूंगा, तुम्हारे दिल बदन से पत्थर दिल निकालूंगा और तुम्हें गोश्त का दिल अता करूंगा और तुम्हारे बातन में मैं अपनी रूह डालूंगा। वो डालने का मकसद क्या है? ताकि तुम मेरे कवानीन पर चलो और मेरी कज़ाओं को हिफ्ज़ करके उन पर अमल करो। खुदा का ये पाक रूह खुदा की बरकतों, खुदा की नेमतों को पाने के लिए दिया जाता है। खुदा का ये पाक रूह तोड़ने के लिए नहीं है जी। आज जो पाक रूह मिल गया बस ये आज तो बात तुसी इधर तो मैं इधर, ये पाक रूह तोड़ने के लिए नहीं, ये पाक रूह जोड़ने के लिए दिया गया है, ये पाक रूह शराकत के लिए दिया गया है, ये पाक रूह खुदा की रहनुमाई में जिंदगी गुजारने के लिए दिया गया है ताकि आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सके। योएल नबी अपने दूसरे बाब की 28वीं आयत में इस रूह के बारे में बयान करता है और बाद ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह हर बशर पर डालूंगा ताकि और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और तुम्हारे नौजवान रोते देखेंगे। सो पुराना एहतनामा खुदा के रूह के बारे में बयान करता है कि खुदा का रूह दुनिया में मौजूद है। नए एहतनामे में भी इसी पाक रूह की बात की जाती है जो लूका की इंजील उसके पहले बाब की 35वीं आयत है जो मैंने पहले बयान की है कि रूह खुदावंद रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। लूका
बाब की 16वीं आयत में इसी रूह कुदस के बारे में बयान किया जाता है और लिखा है, यूहन्ना इसबागी कहता है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मुझसे एक कड़ी तर आने वाला है जिसकी जूती का मैं तस्मा खोलने के लायक नहीं, और वो तुम्हें रूह कुदस और आग से, रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। इसी तरह से लूका की इंजील उसके पहले बाब की 22वीं आयत में है, जब यीशु मसीह दरियाए उर्दन के पानी से बपतिस्मा लेकर बाहर निकलता है तो वहां पर लिखा है, और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानित यीशु पर उतरा और आसमान से ये आवाज आई। हाँ जी, हाँ, आवाज किसी, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। और ये सब कब हुआ? जब रूह कुदस यीशु पर नाज़िल होता है। रूह कुदस यीशु पर नाज़िल होकर उसे मसीहाई काम के लिए, मसीहा के मिशन के लिए मखसूस करता है, उसे बियाबान में लेकर जाता है, उसे नजात के मिशन के लिए तैयार करता है, उसे सलीब उठाने के लिए तैयार करता है, उसे रोजे और रियाजत में रहने के लिए तैयार करता है, उसे मजबूती बख्शता है ताकि वो अपने बाप के साथ अपना ताल्लुक कायम और दायम करने वाला बन सके। रसूलों के अमाल में, जिसमें से आज की ये पहली तिलावत की गई, जहां पर मौत मसीह जो है वो रसूलों पर उतरता है, यकबारगी एक तुंद हवा चलती है और आसमान से शोलों की सी जुबान शागिर्दों पर जाहिर होती है, नाज़िल होती है, और शागिर्द दलेर होते हैं, शागिर्द मजबूती पाते हैं, शागिर्द दलेर होकर यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, और इसी प्रचार में शागिर्द अपने मिशन को जो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें सौंपता है, मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब का मिशन कि जाओ और जाकर सारी दुनिया को, सारी खलकत को अंजीर की मुनादी सुनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। इस मिशन में शामिल होने के लिए रूह कुदस उन्हें भेजा जाता है, रूह कुदस उन पर नाज़िल किया जाता है, रूह कुदस उन्हें अता किया जाता है, रूह कुदस उनमें डाला जाता है ताकि वो खुदा के इस मिशन में, नजात के इस मिशन में, बादशाही के इस मिशन में, बादशाही के बेटे और बेटियां बनाने के मिशन में शामिल और शरीक हो सके। इसलिए रूह कुदस पाना या रूह कुदस पाने के लिए इंसान की तैयारी का होना लाज़िम है, और ये तैयारी जो है, इस तैयारी में खुदा के मिशन को पाना लाज़िम है। इसलिए ऐसे उठ के कह देना ना कि मैंने रूह कुदस का बपतिस्मा ले लिया या मैनू रूह कुदस मिल गया, तो जरा गौर नाल ते सोच समझ के कहना है, क्योंकि रूह कुदस का बपतिस्मा लेना यानी कि खुदा दे मिशन को, नजात दे मिशन को, बादशाही दे मिशन, आसमान की बादशाही दे मिशन को हासिल करना है। तो आसमान की बादशाही दे मिशन को हासिल करने लई यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के प्रचार लई अपने आप को तैयार करना है। इसलिए रूह का भरा शख्स और रूह के बगैर शख्स, दो मुख्तलिफ शख्सियात तुम्हारे सामने नजर आ गया। जरा रूह का भरा शख्स होएगा वो माफ करने वाला होएगा, जरा रूह का भरा नहीं होएगा वो बदला लेने वाला होएगा। जरा रूह का भरा शख्स होएगा वो वंडन की कोशिश करेगा, बांटना, वो बांटने की कोशिश करेगा। लेकिन जो रूह से भरा नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ी भरा है, वो समेटने की कोशिश करेगा। ऐ नुक्कर भी समेट लो, और नुक्कर भी समेट लो, ऐ खानदान भी ले लो, ओ खानदान भी ले लो, समेटना, लालच में रहेगा। जो रूह से भरा शख्स है वो शराकत करेगा, शिरकत कराएगा, सबको अपनी इस बरकत में शरीक करेगा।
लेकिन जिस पे पास रूह नहीं है वो ज़हीरा अंदोज़ी करेगा, ज़हीरा दोज़ी में टाइम गुजारेगा। जिसके पास रूह होगा वो एहसास और तरस खाने वाला होगा, और जिसके पास रूह नहीं होगा वो हवस और हिरस का शिकार होगा। जिसके पास रूह होगी वो खिदमत करने के लिए अपने आप को तैयार रखेगा, और जिसके पास रूह नहीं है वो खिदमत कराने के लिए अपने आप को तैयार रखेगा। जिसके पास रूह है वो दूसरों के लिए कुर्बानी देने के लिए अपने आप को तैयार करेगा, और जिसके पास रूह नहीं है वो दूसरों की कुर्बानियों पर पलने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। इसलिए रूह से भरा शख्स और रूह से ना भरा शख्स, ये दो शख्सियत आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। हमारी दुनिया भी इसी तरह की है। हमारी दुनिया में बेशुमार टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारी दुनिया में रूह नहीं है। हमारी दुनिया में बेशुमार सियासत है, मगर हमारी दुनिया में रूह नहीं है। मशीनें बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें रूह नहीं है। तरक्की दुनिया में बहुत सारी है, लेकिन रूह नहीं है। अनाज हमारी दुनिया में बहुत सारा है, लेकिन दुनिया में रूह ना होने की वजह से आज भी लाखों लोग जो है वो भूखे सोते हैं। ज़हीरा करने वाले ज़हीरा करते जाते हैं, बांटने वाले बांटते जाते हैं, लेकिन रूह ना होने की वजह से आज भी लाखों लोग जो है वो भूखे सोते हैं। हमारे अपने घर से अनाज बाहर चला जाए तो सानू खलबली पै जाती है। एक प्लेट चनिया दी नाम दे सानू दे दो तो 10 दिन असि उन्हें सुनानी। चने कैसे बने सन? मैं बनाए, मेरी बेटी ने मसाला बनाया सी, मैं कोल खलोती दी सा, पहली बार उन्हें बनाए ने, खर्चे बने सन। चलो अगली बार तुसी बनाओगे सानू कुछ खाए जरा। 10 दिन असि वो चने याद ही कराने। क्यों? क्योंकि रूह अंदर नहीं है। वो लालच या वो चीजें जो हम बांट सकते हैं वो हम बांटना नहीं चाहते। हमारा हमसाया भूखा सो रहा है, हमें नहीं पता वो भूखा सो रहा है। हमारे हमसाये के बच्चे रो रहे हैं, हमें नहीं पता वो रो रहे हैं, क्योंकि हमें एहसास नहीं है। ऐसे बैठे लोग, मैं तुहानू पूछना, तुसी सारे ये दावा करते हो साडे को रूह कुदस है, तुसी सारे दावा करते हो कि असी मसीह हां, तुसी सारे दावा करते हो असी बपतिस्मा लिया है और बपतिस्मा के जरिए सानू खुदा ने पाक रूह दिता है। तुसी सारे ये दावा करते हो कि साडा बदन रूह कुदस की हैकल है। मैं तुहाडे कोलों सवाल करन लगा, कदी तुसी अपने हमसाये नू पूछिया कि अज दा दिन कैसा गुजरे है, या तुहाडे घर खाण लई कुछ है? हाँ या ना? हाँ जी? नहीं। तो कहन को सी कहने साडे अंदर की है? रूह कुदस। कहन को सी कह रहे हैं असी मसीह हां, कहन को सी कह रहे हैं साडे अंदर मौत है मसीह है, वादा है मसीह है, मसीह का रूह है। मसीह का रूह सिर्फ दुआवां तक की हद तक नहीं, मसीह का रूह माफ करने की हद तक भी जाता है, मसीह का रूह बांटने की हद तक भी जाता है, मसीह का रूह शराकत की हद तक भी जाता है, मसीह का रूह अपनी बरकत में दूसरों को शामिल करने की हद तक भी जाता है। इसलिए अगर आप ये दावा करते हैं कि मुझ में रूह कुदस है, तो जरा सोच के दावा करियो, क्योंकि असी अपनी जिंदगी का दावा कर रहे हैं कि मेरे अंदर रूह कुदस है। और जिन्हों एक बार रूह कुदस मिल गया, यानी कि ओदे को हमेशा ਲਈ रूह कुदस मौजूद है, ओदे को हमेशा ਲਈ रूह कुदस की है मौजूद है, वापस नहीं लिया जा सकता। जिन्हों एक बार बरकत मिल गई है ओदे को वापस नहीं ली जा सकती। जिन्हों एक बार रूह कुदस मिल गया है ओदे को वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन चूंकि हम रूह कुदस को बस इस बात में कहते हैं कि जी ये बहुत लंबी दुआ करता है, ਇਹਦੇ को रूह कुदस है, ये जी गैर जुबान बोलता है, ਇਹਦੇ को रूह कुदस है, ये जी ये बहुत मौज से करता है, ਇਹਦੇ को रूह कुदस है, ये जी ये नु खुदा ने बहुत बरकत दी है, ਇਹਦੇ को रूह कुदस है। रूह कुदस के और भी बहुत से काम है,
मोहब्बत रूह कुदस का काम है, शराकत रूह कुदस का काम है, माफी रूह कुदस का काम है। आप में से कितने हैं जो अपने रिश्तेदारों को माफ करते हैं? किन्ने ने साडे चों जेड़े दही दी लस्सी आ लड़ाई वधांदे ने? आओ ये लोग बच्ची ने सच बोलिया, ताली बजाओ इधर, शाबाश। उन्होंने एक ने जरूरत की थी सच बोलने की, माफ करना। इसलिए ये दावा करना कि मुझ में रूह कुदस है या मैंने रूह कुदस का बपतिस्मा ले लिया है, तो फिर रूह के काम करने होंगे, रूह की बरकत के साथ चलना होगा, फिर रूह के फजल के साथ चलना होगा। ये नहीं कि आपको लंबी जी दुआ कर दी तो दुआ करें तो अगले दिन लड़ाई भी पा गई, ए जी मैंने रूह कुदस मिले आए। रूह का काम है रहनुमाई करना। लड़ाई च नहीं तुम्हारी रहनुमाई होती, गुस्से च नहीं तुम्हारी रहनुमाई हो रही, घर दे विच मुख्तलिफ काम और परेशानियां ने ओदे च तुम्हारी रहनुमाई नहीं हो रही, सिर्फ दुआ की रहनुमाई हो रही है। सोचना है कि सिर्फ दुआ ही में रूह कुदस है या आप मसीही जिंदगी में भी रूह के काम है, अलहदगी करने में रूह कुदस है या जुड़ने में रूह कुदस है? हाली जोड़ने में के अलहदा होने में? तुसी आंदे सी मसीह आ, दूजे दिन तुसी आंदे जे पे कान भी पा दो, उत्ते पोर्शन नवा बना लो, चुल्ला लैला कर लो, चंगेल लैला कर लो, तो कहते हो जी मेरे से रूह कुदस है। रूह का काम है जोड़ना, रूह का काम है शराकत करना। ते असी कहने जिस अपने ही खाना है तो असी अपने ही पाना है, अपने ही पकाना है, अपने ही खाना है, असी इन्हें खुश हैं। क्या ये रूह का काम है? हाँ जी, ये रूह का काम नहीं है, ये रूह की बात नहीं है, ये रूह के कामों में शामिल नहीं है। आप कोई भी नबूवत, कोई भी नेमत उठा के देख ले, यहाँ पर लगी नेमतें पढ़ ले, किसी एक नेमत में जुदाई है? हाँ जी, किसी एक नेमत में लड़ाई है, किसी एक नेमत में नाफरमानी है, किसी एक नेमत में गुस्सा है? असी में क्यों करते हैं? दुआ वाली साडी जुबान रुकदी नहीं, लड़ाई वाली साडी जुबान खलोदी नहीं। क्या मसीह कहते हैं साडे अंदर की है? बोलो, कहन साडे अंदर की है? रूह कुदस, खुदा दा रूह। असी जी गोता लैंदा, असी रूह दा बपतिस्मा लैंदा, असी जी फलां चर्च जो रूह दा बपतिस्मा पाए हैं, अगले दिन लड़ाई भी पाए हैं। ये नहीं दसना, अगले दिन फ्लैट भी अलग कर लिया, ये नहीं दसना, मां प्यो को घरों बाहर कर दिता, ये नहीं दसना। ये रूह के काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये नेमतें जो आपको बना के लिख कर दी गई है, इन नेमतों को देने का मकसद है कि नेमतें 365 दिन आपके साथ, आपकी औलाद के साथ हैं। ये 365 दिन आपने अपने खानदान के साथ इन नेमतों के लिए खुदा से दुआ करनी है, इन बरकतों के लिए खुदा से दुआ करनी है, अपने आप को तैयार करना है इन नेमतों को हासिल करने के लिए, अपनी तैयारी करनी है इन बरकतों को पाने के लिए। इसलिए इधर पेंटिकोस्ट जिसका मतलब है 50वां दिन, क्या मतलब है जी? 50वां दिन। सो आज हम इधर पेंटिकोस्ट मना रहे हैं। यहूदी शरीयत भी ये 50वें दिन की ईद मनाती थी, और वो ईद थी फसल के नजराना पेश करने की ईद। पहला नजराना, फसल का पहला नजराना पेश करने की ईद। ये तस्नीया शरा उसके 18वें बाब की 4थी आयत में है, जहां पर खुदा इस बात का हुक्म देता है कि तू अपने गले, अपनी मैं, अपने तेल के पहले फल और अपनी भेड़ की पहली ऊन नजर गुजरान। सो यहूदी लोग यरूशलेम में आए हुए थे नजर गुजराने के लिए, हैकल में नजर गुजराने के लिए, और यहाँ पर शागिर्द भी जमा थे बाला खाने में तैयारी के लिए, खुदा के मौत को, वादे को
मसीह के इस वादे का इंतजार करते हुए अपने आप को तैयार कर रहे थे। सो तैयारी में उन्हें रूह कुदस मिलता है। 50वें दिन में यहूदी शरीयत के मुताबिक अपना पहला फल हैकल में पेश करते हैं। बात गौर से सुननी है। दुनिया का नजराना हैकल में जा रहा है, पहला नजराना हैकल में जा रहा है, और कलीसिया का पहला नजराना दुनिया में जाता है। शागिर्द कलीसिया का पहला नजराना बनते हैं। शागिर्द कलीसिया का पहला फल बनते हैं, और ये पहला फल दुनिया को पेश किया जाता है। यहूदी पहला फल खुदा को पेश करते हैं, खुदा अपना पहला फल दुनिया को पेश करता है। और दुनिया को क्यों पेश किया जाता है? ताकि दुनिया इस अमल में, इस मिशन में शामिल और शरीक हो सके। सो ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। वो दुनिया से खुदा की तरफ जा रहे हैं, खुदा अपने घर से दुनिया की तरफ आ रहा है। यहां से ये बढ़ रहे हैं, वहां से खुदा बढ़ रहा है। यहां से ये खुदा की तरफ जाते हैं, वहां से खुदा दुनिया की तरफ आता है और अपने बेटे के मिशन को फैलाता है। मिशन क्या है? जाओ और जाकर सारी खलकत को अंजील की मुनादी सुनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए आज की ये ईद हमें यही याद दिलाती है कि रूह कुदस कलीसिया के पहले फल यानी शागिर्दों को अता किया जाता है, नई जिंदगी शागिर्दों को दी जाती है। यही रूह कुदस कलमा मुतजस्सद होने में मकद्दसा मरियम की मदद करता है। यही रूह कुदस कलीसिया की पैदाइश का हिस्सा बनता है। यही रूह कुदस उर्दन के पानी में यीशु मसीह पर जाहिर होता है, उसे मसीहाई काम करवाता है। यही रूह कुदस कलीसिया में ईद पेंतिकोस्त पर नाज़िल होकर शागिर्दों से मसीहा के मिशन का काम करवाता है। और काम क्या है? काम है माफ करने का काम है बांटने का काम है शराकत का काम है इंसाफ करने का काम है खिदमत करने का काम है दूसरों के लिए कुर्बान होने का काम। यही रूह कुदस मरियम को सौंपा गया। यही रूह कुदस मरियम को मिला, यही रूह कुदस नबियों को मिला, यही रूह कुदस शागिर्दों को सौंपा गया, और इसी रूह कुदस से आप सबको भी नवाजा गया है। इसी रूह कुदस में आप सबों को भी मखसूस किया गया है। इसी मिशन में आप सबों को भी बुलाया गया है कि आप भी खुदा की बादशाही के इस मिशन के फैलाव के लिए अपने आप को पेश करने वाले बन सके। इसलिए मेरे शिष्यों, मकद्दसा मरियम के साथ कलीसिया इस मिशन को रूह कुदस के जरिया से हासिल करती है और पाकरू की नेमतों, फज़ाइल और बरकत के साथ जुड़ती है। यहूदी शरीयत ईद मनाने के लिए यरूशलेम जाते हैं और शागिर्द यरूशलेम में रूह कुदस की ईद मनाते हैं। यहाँ पर अपनायत का अमल होता है, यहाँ पर कबूलियत का अमल होता है। और लिखा है कि जब पतरस रसूल उठता है और कलाम करता है तो बहुत सारे 3000 मर्द जो है वो यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। रूह जोड़ने का काम करता है और इस रूह के वसीला से हम अपने खानदानों को जोड़ सकते हैं। अगर हम में रूह कुदस है तो हमारे खानदान जुड़े रह सकते हैं। अगर हम में रूह की बरकत है तो हमारे खानदान में रूह की बरकत में कायम और दायम रह सकते हैं। आज की जिले मुकद्दस में एक काम होता है जिसमें है फूंकने का काम। फूंकना, खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर होता है, उन्हें कहता है तुम्हें सलामती हासिल हो, और उन पर फूंकता है। फूंकर में कहता है तुम रूह कुदस लो। कलाम मुकद्दस में फूंकने से मुराद है जिंदगी अता करना। कलाम मुकद्दस में फूंकने का मतलब है जिंदगी से नवाजना। पुराने नामे में 2
दो दफा फूंका गया है। पहला तकवीन की किताब में दूसरे बाब में जब एक मट्टी का पुतला बनाया गया, मट्टी के उस पुतले में मट्टी के उस पुतले को आदम को बनाया गया और लिखा है कि उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। और फिर लिखा है कि इंसान जीती जान हुआ। दूसरा फूंकने का काम जो है वो हिस्कियाल नबी की किताब उसके 37वें बाब में है, जहां पर सूखी हड्डियों पर नबूवत की जाती है और उन पर गोश्त चढ़ता है, मांस चढ़ता है, लेकिन वो मुर्दा खड़ी है, वो मुर्दा खड़ी है। और फिर कहा गया कि नबूवत कर और फूंक, नबूवत कर और फूंक। सो हिस्कियाल नबी नबूवत करता है और फूंकता है और लिखा है कि वो जीती जान हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। यही काम आज यीशु मसीह करता है। यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब में आज यीशु मसीह शागिर्दों पर फूंकता है, शागिर्दों पर फूंकता है और उन्हें जिंदगी फराहम करता है, रूह कुदस की नेमत फराहम करता है और रूह कुदस की इस नेमत में उन्हें कायम करता है। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब का मुतालिया करें तो उसके शुरू के लफ्ज पढ़े तो लिखा है इब्तिदा में कलमा था, इब्तिदा में कलमा था, इब्तिदा में, ठीक है जी। उसके पहले लफ्ज क्या है? इब्तिदा में। अगर आप तकवीन की किताब में का मुतालिया करें और उसका पहला बाब, उसके पहले बाब के पहले दो लफ्ज क्या है? इब्तिदा में। क्या है? इब्तिदा में। यूहन्ना की इंजील में क्या लफ्ज है? इब्तिदा में, ठीक है जी, इब्तिदा में। यहाँ पर भी क्या है? इब्तिदा में। काम दोनों तरफ एक ही है, फूंकने का। वहां पर बाप फूंकता है, यहाँ पर बेटा फूंकता है। वहां पर इब्तिदा है, यहाँ पर भी इब्तिदा है। वहां पर शुरू है, यहाँ पर भी शुरू है। वहां पर भी फूंकने से जिंदगी मिलती है, यहाँ पर भी फूंकने से जिंदगी मिलती है। वहां पर भी बाप, वहां पर बाप भी अमल करता है, यहाँ पर बेटा इस अमल को दोहराता है, इस अमल को दोहराता है। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है क्रिएशन ऑफ रिक्रिएशन। तख्लीक में अपनी जिंदगी की तख्लीक करना, रिक्रिएशन करना। बाप ने तख्लीक की है, अपनी जिंदगी का दम फूंका है, उस जिंदगी के दम में अपने वादे का दम फूंकना। अपने वादे का दम कौन सा है? रूह कुदस का दम फूंकना, रूह की बरकत का दम फूंकना, मोहब्बत की बरकत का दम फूंकना, फसल की बरकत का दम फूंकना, एहसास की बरकत का दम फूंकना, परहेजगारी की बरकत का दम फूंकना, नेमतों की बरकत का दम फूंकना। क्रिएशन ऑफ रिक्रिएशन। खुदा के काम में, मिशन में अपने मिशन को लेकर जाना, यही रूह कुदस हमें सिखाता है। खुदा के मिशन को आगे बढ़ाना, खुदा के मिशन को आगे लेकर जाना। और आज आप सब रूह कुदस की ईद मना रहे हैं, आज आप सब कलीसिया का जन्मदिन मना रहे हैं। आज कलीसिया की उम्र जो है वो 2023 साल हो गई है। कलीसिया की उम्र 2023 साल हो गई है। कलीसिया आज अपना 2023वां जन्मदिन मना रही है। आज कलीसिया पर 2023 साल बाद भी वही रूह करार पाता है जो 2023 साल पहले यीशु ने अपने शागिर्दों पर रूह कुदस भेजा था। वही रूह, जिंदगी का रूह, मोहब्बत का रूह, वही रूह आज भी कलीसिया में करार पाता है, क्योंकि ये वो कलीसिया है जो यीशु की कायम करता कलीसिया है। ये चट्टान पर बनाई गई कलीसिया है, ये कैफा पर तैयार करता कलीसिया है। और इसके बारे में कहा गया था कि आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। इसलिए आज आपको कलीसिया का 2023वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। यह कलीसिया का 2023वां जन्मदिन आपकी जिंदगियों में रूह कुदस की ईद के साथ आपको पेश किया जाता है। सारे ताली बजाओ, कोई गल नहीं। जो किसी केक नहीं खाना वो लहरा गाल में
خدا دا فضل اس کلیسیا تے خدا دا فضل ایدی ابتدا تے ایدی انتہا یسوع مسیح ہے ایدا الفا ایدا اومیگا یسوع مسیح ہے اور اسی اس کلیسیا تے رکنا جس کلیسیا نو بنانے والا یسوع المسیح ہے